میرے نبی نے فرمایا ایک آدمی پیش ہوگا قیامت کے دن، اس کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، یعنی 50 برابر ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک لیا تو تجھے جنت میں ڈال دیتا ہوں، 51 کر دے، وہ سوچے گا چلو ایک تو مل ہی جائے گی، لیکن جب وہ مانگنے لگے گا تو ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے، نہ بھائی نا توبہ، آج کون لا تزر وازرۃ وزر اخری، ہم نہیں دیتے ہم نہیں دیتے ہم نہیں دیتے، تو بیچارہ ہائے مر گیا۔ تو وہ ایک کہے گا کی ہو گیا، کہے گا یار ایک نیکی سے مار کھا گیا، وہ کہے گا فکر نہ کر تیرا کام بن گیا، کہے گا کیسے کا، میرے پاس ایک ہے تو لے لے، کہے گا میرے پاس ہو یا نہ ہو میرے لیے تو ایک کو ہی ہے کام، وہ بڑا خوش اللہ کی بات پیش ہوگا، یا اللہ میرا تو کام بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ تمہیں آج کس نے دی تھی، تو اس کو بلاؤ، وہ بھی پیش ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے تم اس کو نیکی دیتے ہو، کہا جی دیتا ہوں، کہا کیوں دیتے ہو، آج تو ماں دینے کے لیے تیار، وہ کہے گا یا اللہ میرے پاس تو ایک ہے، اس کا ہونا نہ ہونا میرے لیے تو برابر، تو میں نے سوچا تیرے بندے کا بھلا ہو جائے، آگ سے بچ جائے، سبحان اللہ۔ تو میرے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واہ آج مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں، چل تو بھی جا جنت میں، یہ بھی جا جنت میں، یہ تو میرا اللہ ہے۔ وہ معاف کرنے، عذاب دینے کے بہانے نہیں ڈھونڈتا، معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اللہ سے دعا مانگا کرو، یا اللہ پیسے دے دے، نہیں یہ نہ کہا کرو اے اللہ مال دے تو تیری راہ میں خرچ کرنے کا دل بھی عطا فرما، مال دے تو عثمانی مال عطا فرما۔ میں کئی بار سنتا رہتا تھا، پڑھا بھی تھا کہ حضرت عثمان غنی کے مال میں اللہ نے کتنی برکت دی، پتہ ہے کیا کرتے تھے، وہ ہر بار خرچ کر دیتے تھے اللہ کی راہ میں، دل کھول کر خرچ کرتے، اللہ نے برکت کیسی ڈالی۔ آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کے باغ رہ گئے، آپ کے کنویں رہ گئے، حضرت عثمان کا باغ آج بھی مدینے میں موجود ہے، کنواں بھی موجود ہے اور پراپرٹیز بھی ہیں۔ تو گورنمنٹ نے کیا کیا کہ ایک وقف عثمان بنا دیا، جتنے پیسے اس باغ سے ان پراپرٹی سے آتے ہیں اس سے وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ مجھے ابھی بتایا کسی نے ریسنٹلی کہ مدینے شریف میں ایک ہوٹل ہے، 5 اسٹار یا 4 اسٹار ہوٹل ہے، اس کا نام ہی وقف عثمان ہوٹل ہے۔ حضرت عثمان کے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ ایک ہوٹل بنا دیا گیا ہے، اور اس ہوٹل میں جتنے حاضرین رہیں گے، زائرین رہیں گے، وہ پیسے جمع ہوں گے، وہ بھی وقف عثمان پہ خرچ ہوتے رہیں گے۔ میں سوچنے لگا اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی کا ثواب تو سوچو، وہ آج مزار میں ہیں مگر 1450 سال ہو گئے صدقہ ان کا جاری ہے، مال بہت سو کے پاس آیا جناب۔ دیکھو یہ چند دن کی زندگی ہے، مر جانا ہے۔ یہ نماز ہمیں جنت میں نہیں ملے گی، روزہ ہمیں جنت میں نہیں ملے گا، تلاوت ہمیں جنت میں نہیں ملے گی، اللہ کے سامنے سجدوں میں پڑ جانا یہ ہمیں جنت میں نہیں ملے گا۔ وہاں تو پھر اپنے نفس کی خواہشوں کو پورا کرنا ہے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ تو ان دنوں کو اللہ نے نماز ایک ایسی چیز بنائی ہے جس کے لیے سارے کام چھڑوا دیے، روزہ رکھو سارے کام کرو، حج کرو جاؤ بازار سے خرید و فروخت کرو، یشہدوا منافع لہم، زکوٰۃ 2 منٹ کا کام ہے۔ صرف نماز ایسی ہے جس میں لے کہتا ہے کٹ جاؤ آ جاؤ، اللہ اکبر، اب میں تجھے یاد آ رہا ہوں تو بھی میں خوش ہوں تیرے اوپر، نہیں آ رہا تو بھی میں خوش ہوں تیرے اوپر۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے نا نماز کا لیول مانگا ہے۔ یہ گلاس ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں، اب اس میں پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، عربی میں اس کو کہتے ہیں فراغ، کہ افرغت الکاس، میں نے گلاس کو خالی کر دیا۔ تو صرف نماز میں اللہ نے کہا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، فَإِذَا فَرَغْتَ اور ارغب اخیر میں کہا فرغب۔ اب علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ دل کو فارغ کر کے میرے پاس آ، تو اللہ کے نبی کے دل میں تو اللہ کے سوا کوئی اور تھا بھی نہیں، تو پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے، ویلا ہو گیا کہ اللہ کے نبی میں، اللہ کے نبی کے دل میں انسانیت کا غم تھا بے حد، اور کڑن تھی زبردست، ہر وقت اس میں تڑپتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب تو نماز کے لیے آئے نا تو یہ کڑن بھی ختم کر کے آیا کر،
और जैसे कोई कारोबारी घर जाके कारोबार अरे मान लो ना ये मेरे लिए बेहतर है, मेरा रब नहीं कर रहा ये मेरे लिए बेहतर है, मेरे माँ बाप मेरे लिए बुरा नहीं सोचते, तो वो खालिक अगर उसको यही मंजूर है तो यही मेरे लिए बेहतर होगा। काश ये जिस दिन ये तवक्कुल का लेवल मिल गया, आपको कभी किसी प्रॉब्लम में टेंशन नहीं होगी, काम हो गया तब भी राजी रहोगे, नहीं हुआ जब भी राजी रहोगे कि मेरे रब ने नहीं किया ना, यही मेरे लिए। मैं नहीं समझ पा रहा, मुझे नहीं, बच्चों को कहाँ समझ आती है, वो कहते हैं अब्बू अच्छे नहीं है, अम्मी अच्छी नहीं है, मुझे नहीं दे रही चीज, अब्बू अम्मी को पता है क्यों रोक रहे हैं। अरे मेरी आपकी अक्ल इतनी, हमें ये समझ है कि बच्चे को कब क्या देना है क्या नहीं देना, जिसने कायनात बनाई उसे नहीं पता मुझे कब क्या देना है क्या नहीं देना। कुछ लोगों को माल उलमा कहते हैं इसलिए नहीं दिया जाता कि वो अमीर हो जाएंगे तो नाफरमान हो जाएंगे, ईमान से हाथ धो बैठेंगे। कुछ लोगों को गरीब इसलिए नहीं बनाया जाता कि वो गरीब होंगे तो फक्र फाका की वजह से इस्लाम से चले जाएंगे। अल्लाह की देन है, अल्लाह की मर्जी है, वह तो इज्जु मन तशा वह तो जिल्लु मन तशा। मैं और आप होते कौन है एतराज करने वाले कि उसको अमीर क्यों बनाया, इसको गरीब क्यों बनाया, इसको लंबा क्यों बनाया, इसको छोटा क्यों बनाया। अरे रब की मर्जी, वो खालिक और मालिक है, हम बंदे हैं, हमारा काम मानना है, हमें उससे मोहब्बत करना है, हमें उस पर भरोसा करना है। खुदा की कसम अगर आज मैं और आप तवक्कुल को पालें, जिंदगी गुजारना आसान हो जाएगा। एक नौजवान कहने लगा मौलाना कोई तावीज़ दो, मेरी बीवी से लड़ाई रहती है। मैंने कहा बीवियां ते तवीज़ चलते ही कोई नहीं। कहने का क्या करूं? मैंने कहा नबी वाला तरीका इख्तियार करो, मोहब्बत दो, इज्जत दो, एहतराम दो, और जब खाने पर बैठो 2-3 लुक़मे अपने हाथ से खिला दो। कहने लगा इससे क्या होगा? मैंने कहा तू देख लेना क्या होगा। 10-12 दिन बाद उसका फोन आया, मैंने पूछा मेरी बात पे अमल किया? कहने लगा नहीं। मैंने कहा क्यों? कहने लगा शर्म आती। मैंने कहा कमजोर के साथ लड़ते हुए शर्म नहीं आती? कमजोर से भी कोई लड़ता है, औरत तो बेचारी कमजोर है, उससे भी कोई लड़ता है। थोड़ी देर के बाद उसका फोन आया, कहने लगा मौलाना कमाल हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा मैंने जो ही उसके मुंह में नवाला डाला, उसका मुंह वहीं खुला रह गया। वो कहने लगी तुम्हें किसने ये सबक पढ़ाया, तू तो खुद तो नहीं कर सकता। उन्होंने कहा मुझे मौली तारिक जमील ने पढ़ाया। उन्हें ऐसे झोली उठाई, कहा मौली तारिक जमील ने बात रखे जहाँ तेन बंदा बनाया कि मेरे नबी की सिखाई हुई जिंदगी है। जब कोई दिल दुखाए ना, कोई दिल तोड़े, कोई तकलीफ पहुंचाए, इंसान है, सबके साथ होता है। ये आयत याद कर लेना, सिद्दीक़ अकबर का ये वस्फ याद कर लेना कि या अल्लाह मैं इसे माफ करता हूं, तू मुझे माफ कर। तूने सिद्दीक़ अकबर को तो कुरान में फरमाया कि अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है, मैं भी उनका गुलाम हूँ, सहाबा का चाहने वाला हूँ। अल्लाह मैं छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने मुलाजिम को माफ कर रहा हूँ, मैं अपनी बीवी को माफ कर देते हैं। बीवी से भी बाजों का तकलीफ होती है। अगर बहनें मुझे सुन रही हैं, हम अपने शौहर को माफ कर दें। बहुत पहुंचाते हैं शौहर तकलीफ, पता है हमारे पास तो खत आते हैं, गालियां देते हैं, मारते हैं, पता नहीं कैसे लोग अपनी बीवी पर हाथ उठाते हैं, बुरी बुरी बातें करते हैं, नशा करके घर आते हैं। ना करो ऐसा। बीवी है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसके पास दिल नहीं, उसको जो बोलना है, जैसे बोलना है, जैसे सुनाना है सुना के चले जाते हैं, वो रोती रहती है। मगर अल्लाह की बारगाह में इसका भी जवाब देना होगा। बाप अगर है तो बेटे को माफ कर दे, बेटे को अगर बाप से तकलीफ है माफ कर दो। अरे थोड़ी सी जिंदगी है, दिल में रख के ना गुजारो। दुश्मनियां पाल के जिंदगी गुजारोगे, ये जिंदगी तकलीफ दे हो जाएगी, टेंशन में रहोगे। लोगों को शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर, फ्रस्ट्रेशन, इतनी बीमारियां हैं। उसके पीछे देखो तो किसी से दुश्मनी पाली है, किसी का हसद पाला है, किसी की बातें सोचते रहते हैं, किसी के लिए नेगेटिव सोचते रहते हैं। फैमिली के अंदर जनाब अजीब घोटाले बने हुए हैं, सास बहू से परेशान, बहू सास के बारे में सोचती रहती है। सब एक दूसरे को माफ कर दो, अल्लाह बख्शने वाला है। एक अल्लाह वाले से किसी ने पूछा था कभी तहज्जुद छूटी? कहने की जिंदगी में एक दफा। कहा वो कैसे जी? कहा मैं उठा तो मेरे सामने एक आदमी लेटा हुआ था, मुझे डर लगा मेरे उठने से ये कहीं उठ ना जाए, इसकी नींद खराब होगी, तो मैं लेट गया, मैंने तहज्जुद नहीं पढ़ी। उसकी नींद को खराब ना करूं इसलिए तहज्जुद नहीं पढ़ी। मुसलमान को सुख पहुंचाना इतना बड़ा अमल है। माँ बहन की गाली ना देना, माँ बहन की गाली से अर्श हिल जाता है, अर्श हिल जाता है जब कोई किसी को माँ बहन की गाली करते। क्यों माओं को बीच में घसीटते हो, किसी की बहनों को घसीटते हो, बीवियों को घसीटते हो? अल्लाह का अर्श कांप उठता है। अपने अखलाक अच्छे करो, और अखलाक के सबसे ज्यादा हकदार आपके वालिदैन हैं, आपकी बीवी है, बीवी के लिए खामिंद है, औलाद है, बहन भाई हैं, इनमें मोहब्बत का रिश्ता कायम करो, इजहार मोहब्बत करो। रब करीम ने फरिश्तों से फरमाया कि वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, इब्राहिम मेरा दोस्त है। तो फरिश्ते कहने लगे या अल्लाह जिसे इतना कुछ दिया जाए उसने दोस्त तो बनना ही होता है। अल्लाह करीम ने फरमाया जाओ आजमाइश कर लो, इम्तिहान ले लो। फरिश्ता इम्तिहान लेने पहुंच गया।
हजरत इब्राहीम के जानवर चर रहे हैं चरागाह में, हजरत इब्राहीम भी हैं, गुलाम भी हैं, बहुत बड़ा रेवड़ है। आप तशरीफ फरमाए। एक फरिश्ता आया तो खेत में छुप के बैठ गया। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े थे तो वो खेत में बैठ के तस्बीह पढ़ने लगा, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत इब्राहीम कहने लगे ये मेरे रब का नाम कौन ले रहा है, बड़ी इसकी मीठी आवाज है, बड़ी कौन है। ढूंढने लगे, घूमते घूमते उसके पास चले गए, फरिश्ता इंसानी शक्ल में। तू मेरे रब का जिक्र कर रहा था? उसने कहा मैं ही कर रहा था। फरमाने लगे यार एक दफा फिर नहीं करता? तो कहने लगा इब्राहीम पहले तो मैं अपनी मर्जी से कर रहा था, तू कहता है तो पैसे लगेंगे, पैसे हैं तो कर देता हूं। हजरत इब्राहीम कहने लगे बोल तू क्या लेगा, मेरे अल्लाह का जिक्र सुनाने का क्या लेगा? कहने लगा जितनी बकरियां आप चरा रहे हैं सारी दे दे तो मैं अल्लाह का जिक्र सुना देता हूं। आपने फरमाया बस जा तेरी सारी हुई, मेरे रब का जिक्र सुना। और फिर शुरू हो गया सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कैफ में, यार फिर जरा सुना, जरा दोबारा सुना। फिर सुनाया, एक दफा फिर कहा। फरिश्ता कहने लगा बस जी आपके पैसे पूरे हो गए। हजरत इब्राहीम कहने लगे चल एक दफा और सुना। कहने लगा पैसे लगेंगे, तो क्या लेगा? कहने लगा गाय भैंसे सारी मेरी। फरमाया बस यार इतनी कीमत, तू सुना सही, सारा कुछ ही तेरा। फिर शुरू हो गया सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। गायें दे दी, भैंसें दे दी, वो जिक्र सुनाता है। हजरत इब्राहीम कभी मचलते हैं, कभी रोते हैं, कभी आहें भरते हैं। तू मेरे रब का नाम ले रहा है, जरा फिर से ले। कैफ जारी है। कहने लगा बस भाई। हजरत इब्राहीम फरमाने लगे तू और ले ले जो लेना है, मुझे जिक्र सुना। उसने कहा इब्राहीम बकरियां मैं ले चुका, गाय भैंसे मैं ले चुका, ऊंट रह गए, सारे ले लूंगा फिर जिक्र सुनाऊंगा। फरमाया जा तेरा हुआ तू जिक्र सुनाता रहे, मैं देता हूं। दे दिया, कुछ देर जिक्र किया तो अब खामोश हो गया। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे जिक्र सुना। कहने लगा इब्राहीम अब तेरे पास देने को क्या है, हर चीज तो मैं ले चुका। आप फरमाने लगे ये गाय भैंसे बकरियां चराने के लिए तुझे कोई नौकर मुलाजिम भी तो चाहिए ना, तो इस तरह कर मुझे रख ले, मैं रोटी नहीं मांगूंगा, खाना नहीं मांगूंगा, तो अल्लाह का जिक्र सुनाता रहना, मैं तेरे जानवरों की नौकरी करता रहूंगा। याद रखना, हाय ना लेना किसी की, तकब्बुर न करना कि मैं बड़ा कर्रोफर वाला हूं, मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर, मैं प्रोफेसर, मैं सेठ। आज आप कुछ भी हैं, ये अल्लाह ने आपको दिया है। एक हाय लग गई ना, अल्लाह के किसी बंदे को तकलीफ पहुंचा दी और उसने हाथ उठा दिए। ये दुआ बड़ी कमाल की चीज है, तूफान टाल भी देती है और बर्बाद भी कर देती है। बर्बादी से बचना है, लोगों की दुआएं लीजिए। इस बार रमजान में पता है क्या करना, जब आपके घर में इफ्तारी तैयार हो जाए तो अपनी इफ्तारी से पहले निकालना वही अच्छी चीज है और किसी एक घर में भेज दे, एक गरीब को खिला दे, अपने किसी मुलाजिम को। बचा हुआ ना खिलाया करो यार, अब बेहतरीन खिलाओ। जुमला याद रखो, अच्छा दोगे तो अच्छा मिलेगा, पूरा दोगे तो पूरा मिलेगा, और टूटा दोगे तो अब आपकी मर्जी कौन सा चाहिए। अल्लाह की बारगाह में दिल देखा जाता है कि जब मेरी बारी आती है तो ये क्यों घटिया माल देता है। हमारे पैसे अल्लाह को थोड़ी जाते हैं, मगर रब की बारगाह में नीयत देखी जाती है। इंजॉय किया करो, खर्च करो और शुक्र अदा करो। एक सहाबी आया, या रसूल अल्लाह मेरा पड़ोसी है, उसकी खजूर ऐसे टेढ़ी होकर मेरे घर में चंद उसकी शाखें हैं, उन पे फल लगता है, वो जो टूट के गिरता है, मेरे बच्चे उठा लेते हैं, हम गरीब हैं, वो भागा भागा आता है, उनके मुंह से खजूर निकाल लेता है। उसको कहें कि बच्चों पर इतनी ज्यादती ना करे। आपने उसको बुलाया, वो मुनाफिक था। आपने उससे फरमाया भाई एक सौदा करते हो? कहा जी क्या? कहा ये खजूर मुझे दे दो और इसके बदले जन्नत में मैं खजूर लेके दूंगा। वो कहने लगा या रसूल अल्लाह ये असल में मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, कोई और खजूर होती मैं दे देता, ये तो मेरी माजरत है। वो तो मुनाफिक था, उठ के चला गया। एक सहाबी बैठे थे, वो कहने लगे या रसूल अल्लाह अगर मैं वो खजूर लेके दे दूं तो मुझे जन्नत में ले देंगे? उनका नाम है अबू दाह। आपने कहा हाँ, तू मुझे लेके दे दे, मैं तुम्हें ले दूंगा। वो उसके पीछे चले गए, ए भाई कितने में बेचोगे? मैंने कहा जा मैंने अल्लाह के नबी को नहीं दी, तुम्हें कैसे दे दूं? कहा अच्छा भाई मुंह से बोल कितने लेने हैं? तो उसने जान छुड़ाने के लिए कहा कि अपना सारा बाग मुझे दे दे, खजूर ले ले। बाग में 600 खजूरें और ये खजूर किसी और को देनी है। तो कहता है पक्के हो, फिरोगे तो नहीं? कहा मैं पागल हूं, मैं फिरूंगा?
मुझे 600 खजूरों का बाग मिल रहा है। उन्होंने कहा डन, खजूर मेरी बाग तेरा। वो भागे भागे आए, या रसूल अल्लाह मैंने सौदा कर लिया। कहा कैसे किया? कहा सारा बाग दे के खजूर ले ली। आपने कहा फिर मेरा सौदा भी बदल गया। कम मिन अदकन रदाहा वदारन फयाहा दे अबिदाहा फिल जन्ना। मेरे साथी, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत में एक घर नहीं महल बना दिए, सैकड़ों, और एक बाग नहीं हजारों बाग तेरे लिए तैयार कर दिए। ये है ईमान की निशानी, ये है मोहब्बत की निशानी। याद रखो, टेंशन ऐसी चीज है जो मुताद्दी है। टेंशन, जो टेंशन का मरीज है ना, वो अकेला नहीं होता, वो कब्र में जाने से पहले 25 लोगों को टेंशन का मरीज बना के जाता है।